ایسا بھی نہیں کر رہے، یہاں تک کہ اپنے غلام کو بھی نہیں کہہ رہے کہ آؤ میرے ساتھ آؤ، یہ راشن اٹھاؤ، یہ تھیلا اٹھاؤ، یہ بستہ اٹھاؤ اور غریبوں تک ہم پہنچائیں۔ بہت سارے مالدار ہیں الحمدللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، میں ان سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی جب خرچ کریں تو خود جا کر اللہ کے راستے میں دیں۔ ان کے نوکر ہوتے ہیں، ان کے پاس کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو آرڈر دے دیتے ہیں کہ لے کر جاؤ، اتنا پیسہ فلاں گھر پہنچا دو، اتنا چاول فلاں گھر پہنچا دو، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے صدقہ و خیرات کو چھپائیں اور اس گناہ سے، یعنی احسان جتلانا یہ جو گناہ ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے اگر ہم اور آپ نیکی کریں گے تو پھر اس سے اپنے آپ کو اس قسم کے گناہ سے بچا سکتے ہیں۔ ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صرف یہ حکم دیا کہ تم بس خرچ کرتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، جیسا کہ پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ مطلب کیا ہے؟ نیکی کرو بھول جاؤ، اس آدمی سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھو، نہ خود یاد دلاؤ، نہ اس آدمی کو یاد آنے پر مجبور کرو، نہ خود اس کے سامنے تذکرہ کرو، نہ دوسروں کے سامنے تذکرہ کرو کہ میں نے ایسا کیا، میں نے مسجد کو اتنا پیسہ دیا، میں نے فلاں آدمی کو اتنا پیسہ دیا، میں نے فلاں عورت کی شادی کروائی، میں نے اس کے اوپر ایسا احسان کیا۔ یہ تمام چیزیں اس سے ہمارے صدقہ و خیرات ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ کو موت آنے سے پہلے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں زندگی دی ہے، ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس موقع کو غنیمت جانیں اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، جو پیسہ ہم نے تمہیں دیا ہے، ان پیسوں کو میرے راستے میں خرچ کرو۔ ہم جو پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اپنے چاہنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری اپنے کوشش کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، آپ اپنے دماغ میں اس بات کو رکھیں کہ میں نے چاہا اس لیے میں نے نیکی نہیں کی، بلکہ اللہ نے مجھے توفیق دی اس لیے میں نے نیکی کی۔ اگر یہ احساس ہمارے دل میں آ جائے گا، کبھی بھی کتنی بھی بڑی آپ نیکی کر لیں گے، آپ کو لگے گا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق تھی، اللہ کا فضل تھا کہ میں نے کام نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى۔ معزز حاضرین جمعہ،
बुज़ुर्गों, नौजवानों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, तमाम किस्म की तारीफ़, हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व सज़ावार है, जिसके हम और आपकी ज़िंदगियों पर अनगिनत बेशुमार इनामात एहसानात हैं, जिसने हम इंसानों को इस दुनिया में पैदा करने के बाद हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, हिदायत के रास्ते पर चलने के लिए आसमान से किताबों को नाजिल फरमाया, रसूलों को मबऊस फरमाया। बादहु दर्द व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी ज़िंदगी हम तमाम के लिए उसवा हसना, उसवा कामिला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हम और आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, ये बात हम तमाम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को दुनिया में भेजने का या इंसानों को दुनिया में पैदा करने का मकसद ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, हम उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर चल कर अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकिनार करेगा। अब हम इसी मकसद को लिए हुए दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की नेकियां करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अच्छाइयाँ करते हैं। हर आदमी अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो जो नेकी आदमी कर सकता है करता है, इसी उम्मीद के साथ कि नेकियां कल मुझे क़यामत के दिन कामयाब करेंगी, इन नेकियों के ज़रिए से मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन मसला ये होता है कि हम और आप नेकियां करते हुए साथ में उन नेकियों के साथ ऐसे भी कुछ गुनाह के काम करते हैं, ऐसे भी कुछ अमाल हमारी और आपकी ज़िंदगी में हमसे सरजद होते हैं कि जिसकी वजह से हमारी ये नेकियां ज़ाय हो जाती हैं, हमारी ये नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और हम और आपको इस बात का एहसास तक भी नहीं होता, शुऊर तक भी नहीं होता। और फिर जब हम अल्लाह तबारक व तआला के पास क़यामत के दिन जाएंगे तो हम और आप ये सोचते होंगे, समझते होंगे कि मैंने तो बहुत सारी नमाज़ें पढ़ी, मैंने तो बहुत सारे सदक़ा व खैरात किए, मैंने तो बहुत सारे लोगों को खिलाया, मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की, बेशुमार मैंने बहुत सारी नेकियां की। लेकिन जब वहां पर अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाएंगे, खड़ेंगे, तो पता चलेगा कि हमारे नामा आमाल में किसी किस्म की कोई नेकी नहीं है। वजह क्या होगी? वजह यही होगी कि हमने नेकियां तो की लेकिन उन नेकियों की हमने हिफाजत नहीं की। जैसा इंसान दुनिया के अंदर पैसा कमाने के बाद पैसा कमाने की हिफाजत की आदमी ज्यादा फिक्र करता है, इसी तरह हम और आपको भी चाहिए कि दुनिया में हम जितनी भी नेकियां करें, छोटी नेकी हो कि बड़ी नेकी हो, नेकी करने से ज्यादा फिक्र हम और आपको इस बात की होना है कि इन नेकियों की मैं हिफाजत कैसे करूं, किस तरह से ये नेकियां मुझे कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास सुरखरू करेंगी, किस तरह से नेकियां मुझे अल्लाह तबारक व तआला के पास कामयाब करेंगी। तो इसलिए नेकियों की हिफाजत हम और आपको करना है इस एतबार से कि हम ऐसा कोई गुनाह ना करें, ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हमारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, जिससे हमारी नेकियों पर, हमारी मेहनतों पर पानी फिर जाता है। उन्हीं में से जो गुनाह के हमारी नेकियों को बर्बाद करने वाले हैं, उनमें से एक चीज का मैं आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस खुतबे में आपके सामने तस्किरा करने वाला हूं, ताकि हम और आप इस तरह के जो भी गुनाह है इससे अपने आप को बचाए रखें, महफूज रखें, फिर इसके जरिए से हमारी नेकियां भी महफूज रहेंगी और कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम और आप अल्लाह के पास कामयाब भी हो पाएंगे। तो हम और आप जब नेकियां करते हैं तो जो हमारी नेकियां जिन गुनाहों की वजह से बर्बाद होती है उसकी दो किस्म के हैं, दो किस्म के गुनाह हैं। एक तो वो गुनाह है जिससे हमारी पूरी की पूरी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, पूरी की पूरी नेकियां ज़ाय हो जाती हैं, और एक किस्म का गुनाह वो है कि जिससे पूरी नेकियां तो बर्बाद नहीं होती लेकिन वो गुनाह जिस नेकी के साथ मिल जाता है, जिस नेकी के अंदर वो गुनाह पाया जाता है, हमारा वो नेकी, हमारी वो नेकी, हमारा वो अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहां ज़ाय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसी बात की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया सूरतुल बकरा की उस आयत के अंदर जो मैंने खुतबे मसनूना के बाद आप लोगों के सामने तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान फरमाते हैं, कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, तुम अपने सदका व खैरात को, जो भी तुम अल्लाह तबारक व तआला के
راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر تم خرچ کرتے ہو، ان صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر، اسی طرح لوگوں کو تکلیف دے کر ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ہم اور آپ کو کھلے الفاظ میں پیغام دے رہے ہیں کہ جب تم صدقہ و خیرات کرو گے تو پھر اس صدقہ و خیرات کے کرنے کے بعد کبھی اس آدمی پر احسان مت جتلانا۔ اگر تم نے احسان جتلایا اور اگر تم نے اس آدمی کو تکلیف دی، صدقہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے بتاتے پھر رہے ہیں، صدقہ کرنے کے بعد ہم اور آپ اس کی فوٹوز لے رہے ہیں، اسے لوگوں کے اندر شیئر کر رہے ہیں، اس سے جس آدمی پر آپ نے صدقہ کیا، جس آدمی کی آپ نے مدد کی، جب اسے پتا چلے گا کہ اس طرح سے میری فوٹوز وائرل ہو رہی ہیں تو اس آدمی کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ نے کہا کہ اس طرح کرو گے تو تمہارے صدقہ و خیرات باطل ہو جائیں گے، تمہارے صدقہ و خیرات برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر جس چیز سے ہم اور آپ کو روک رہے ہیں، جس گناہ سے، جس عمل سے ہم اور آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں، وہ ہے احسان جتلانا۔ کوئی بھی ہم اور آپ نیکی کریں، کسی آدمی کی ہم اور آپ کسی بھی طرح سے مدد کریں، چاہے صدقہ و خیرات کے ذریعے سے مدد کریں یا اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو اللہ نے پاور دیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ کسی آدمی کو مصیبت سے باہر نکال رہے ہیں، کسی آدمی کے آپ نے گناہ کو دیکھا، اس کے گناہ پر آپ پردہ پوشی کر رہے ہیں، اس کے گناہ کو آپ چھپا رہے ہیں، کسی بھی قسم کی مدد کیوں نہ ہو، صرف صدقہ و خیرات تک کی یہ بات نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس آیت کی روشنی میں بات بیان فرمائی ہے، جب اللہ تبارک و تعالی احسان جتلانے پر صدقہ جیسی عظیم نیکی کو اگر اللہ تبارک و تعالی باطل کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، تو پھر صدقے سے کم جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو لوگوں پر احسان آدمی کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، پھر اگر وہ آدمی اس پر احسان جتلائے گا تو جس طرح اللہ صدقہ و خیرات کو ضائع کر دے گا، باطل کر دے گا، اسی طرح جو دوسری نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اللہ نے آگے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو آدمی اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو جس طرح آدمی دکھاوے کے لیے مال خرچ کرے گا تو اس آدمی کو اس مال کے خرچ کرنے پر کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں دی جائے گی، اس کا وہ صدقہ برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے صدقہ کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد جس کے ساتھ ہم نے بھلائی کا معاملہ کیا ہے اس آدمی پر احسان جتائیں گے، اس آدمی کو تکلیف دینے والا اگر ہم اور آپ کوئی عمل کریں گے تو پھر اس کے ذریعے سے بھی ہمارا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، ہمارا یہ عمل برباد ہو جائے گا۔ شریعت اسلامیہ صدقہ و خیرات کی کتنی فضیلتیں ہم اور آپ کو بتاتی ہے۔ 1 روپیہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ نے کیا کہا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اگر کوئی آدمی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ویسے ہی ایک دانے کی سی ہے، جو دانہ جب زمین میں جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں اگتی ہے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے اگتے ہیں، یعنی آپ ایک دانہ زمین میں بوئیں گے، زمین میں ڈالیں گے تو اس ایک دانے کے بدلے 700 دانے اگیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے، اس کے بدلے 700 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ اس طرح کی بے شمار فضیلتیں صدقہ و خیرات کے تعلق سے بتائی گئی ہیں۔ اگر ہم اور آپ صدقہ و خیرات کرنے کے بعد، لوگوں پر احسان کرنے کے بعد، لوگوں کی مدد کرنے کے بعد اس طرح سے احسان جتلاتے ہوئے پھریں گے، اس آدمی کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آج اگر وہ آدمی اس مقام پر ہے تو میری مدد کرنے کی وجہ سے، میں نے اسے مدد کی، آج وہ اس مقام پر پہنچ گیا۔ اگر میں اس کی مدد نہ کیا ہوتا تو آج وہ جیل میں سڑ رہا ہوتا، اگر میں اس کی مدد نہ کیا ہوتا تو اس کے بچے سڑک پر آ گئے ہوتے، اگر میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، فلاں فلاں۔ ہم نے جتنی نیکیاں کی ہوں گی، انسان کی فطرت ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے۔ انسان جب کوئی اچھائی کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے میری تعریف کرے، میرے بارے میں اچھے کلمات کہیں۔ ایک مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے، ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی اچھائی کا کام کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ لوگوں سے کسی قسم کے بدلے کی امید نہیں رکھتا۔ اگر وہ بدلے کی امید رکھتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے بدلے کی امید رکھتا ہے۔ دنیا کے
अंदर वो लोगों की बातों के अंदर आने वाला नहीं होता, लोगों की बातों से उसे कुछ लेना देना नहीं होता। चाहे लोग तारीफ करें फिर भी वो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, लोग तारीफ करें फिर भी वो अल्लाह तबारक व तआला की खातिर लोगों की मदद करेगा, या लोग उसे बुरा भला कहें तब भी उसके अमल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी। वो इसी तरह अपनी नेकियां करता जाएगा, नेक आमाल करता जाएगा। ये एक मोमिन का शेवा होता है, ये एक मोमिन की सिफत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर मोमिनों के औसाफ बयान फरमाते हुए कहा, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मोमिन तो वो होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की खातिर, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को अपने दिल में लिए हुए वो खाना खिलाते हैं, मिस्कीन को खाना खिलाते हैं, यतीम को खाना खिलाते हैं, और इसी तरह जो कैदी होते हैं उनको खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद उनका क्या अमल होता है? खाना खिला दिए, नेकी का काम कर लिए, उन पर एहसान कर लिए, उसके बाद कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। हमने जो काम किया है ये अल्लाह तबारक व तआला की खातिर हमने काम किया है, तुमसे हमें किसी किस्म के बदले की, किसी किस्म के शुक्र की हमें तुमसे उम्मीद नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमने तुमको खाना खिलाया है तो तुम हमारा शुक्रिया अदा करो, हमने तुमको खाना खिलाया है तो तुम हमें आकर थैंक्स कहो, तुम हमें इसका कोई बदला दो। ये मोमिन की सिफात होती है। अगर हम खाना खिलाकर, उलमा ने इस आयत की रोशनी में बात लिखी है, बताई है कि अगर कोई आदमी किसी पर एहसान करता है, किसी को सदका और खैरात देता है, खाना खिलाता है और उसके बाद कहता है कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं बीमार हूं मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिए, मैं मुसीबत में हूं मेरे लिए दुआ कीजिए, मतलब यह कि वो आदमी का सदका और खैरात जाये हो गया, बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सदका करने के बाद उसका बदला उस आदमी से तलब किया। मोमिनों की अलामत क्या होती है कि वो किसी किस्म का कोई बदला उनसे तलब नहीं करते, किसी किस्म का कोई बदले का सवाल उनसे नहीं करते, यहां तक कि उनसे शुक्रिया के अल्फाज भी वो सुनना नहीं चाहते। हमारा रवैया क्या है कि हम सदका करने के बाद, एहसान करने के बाद हम चाहते हैं कि लोग तारीफ ना भी करें तो कम से कम वो आदमी हमारी तारीफ करे, वो आदमी हमारा एहसान मंद रहे। जिस आदमी पर मैंने खर्च किया है, जिस आदमी को मैंने साथ दिया है, जिस आदमी की मैंने मदद की है, ये इंसान के दिल के अंदर का एहसास होता है, ये इंसान के दिल के अंदर का जज्बा होता है। लेकिन एक मोमिन के दिल का जज्बा हरगिज ये नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की खातिर खर्च करता है, और खर्च करने के बाद वो इन तमाम चीजों को अल्लाह के हवाले कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हमेशा हम और आप याद रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हदीस है, बहुत सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अल्लाह के नबी ने बताई कि अगर कोई आदमी, कोई मोमिन किसी मोमिन की किसी परेशानी को दूर करता है, और अगर कोई मोमिन किसी मोमिन की मदद करता है, एक मोमिन किसी मोमिन के गुनाहों पर पर्दा डालता है, तमाम बातों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान फरमाई कि अल्लाह उसकी दुनिया की परेशानी को दूर करता है और आखिरत की परेशानियों को दूर करता है। अल्लाह उसकी दुनिया में मदद करता है, आखिरत में भी अल्लाह उसकी मदद करता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उस आदमी की पर्दापोशी करता है, आखिरत में भी उसकी पर्दापोशी करता है। बताने का मकसद क्या है? इस हदीस की रोशनी में, इस हदीस में पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आपको दे रहे हैं कि हम नेकी करने के बाद बदले की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से रखें। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ भलाई का मामला करे, तो फिर हम भी अल्लाह तबारक व लोगों के साथ भलाई का मामला करें। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मुसीबतें दूर करे, हम लोगों की मुसीबतें दूर करें। हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी के अंदर खैर व बरकत लेकर आए, तो हम भी लोगों के साथ ऐसा ही मामला करें। हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे, हमारे गुनाहों को छुपा दे, तो हम भी अगर लोगों के ताल्लुक से किसी किस्म की कोई बात हमें मालूम होती है तो उस पर पर्दा डालें। हम जैसा मामला बंदों के साथ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला वैसा ही मामला हमारे साथ करता है। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि बंदा तुम्हारे साथ वह मामला करता है, बल्कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह तुम्हारे साथ वो मामला करता है। यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, कहा हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, कि एहसान का बदला सिर्फ और सिर्फ एहसान ही हो सकता है, अच्छाई का बदला सिर्फ और सिर्फ अच्छाई हो सकती है। लेकिन ये अच्छाई हमें कहां मिलेगी? कल क़यामत के दिन मिलेगी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मिलेगी। क़यामत के दिन जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, जब तमाम के तमाम लोग परेशान होंगे, ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ एहसान का मामला करेगा।
करेगा, अच्छाई का मामला अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ करेगा। हम और आपका ये मामला होना चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करते हो या लोगों की मदद करते हो। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि सिर्फ खर्च का मामला नहीं है, किसी भी किस्म की हम और आप किसी भी आदमी की मदद करें तो हमारा ये मामला होना चाहिए कि उन चीजों को हम और आप जितना हो सके छुपा कर रखें, इतना छुपा कर रखें, इतना छुपा कर रखें कि हो सके तो जिसकी हम मदद कर रहे हैं तो उस आदमी को भी पता ना चले कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। ऐसा सदका करना, अगर कोई आदमी इस तरह से सदका व खैरात करता है, इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में खर्च करता है, तो उसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हम और आपको ये बात बयान फरमाई, कहा सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्ली यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लु। कल क़यामत के दिन, कल क़यामत के जब सूरज हमारे सरों के एकदम बिल्कुल करीब होगा तो ऐसे मौके पर लोग पसीनों के अंदर डूबे हुए होंगे। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला 7 किस्म के लोगों को अपने साए में जगह देगा, 7 किस्म के लोगों को अपने साए में जगह देगा। उनमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का तज़किरा करते हुए फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ा, एक वो आदमी जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, सदका व खैरात किया, फ़अख़फ़ाहा, और फिर वो आदमी उस सदका व खैरात को छुपा दिया, किसी के सामने उसका जिक्र नहीं किया, किसी को पता नहीं चला कि किसने दिया, किसको दिया। हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा अनफ़क़त यमीनुहु, यहां तक के उसके बाएं हाथ को नहीं मालूम कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। यानी इतने उसने अच्छे अंदाज से इसको छुपाया कि उसके दूसरे हाथ को भी पता नहीं चला कि वो आदमी क्या खर्च करने वाला है। यानी उसके जो करीबी लोग हैं उसे भी पता नहीं चल पाता कि वो आदमी क्या खर्च कर रहा है, किसको दे रहा है, क्या दे रहा है। ऐसी मिसालें हमें सहाबा की जिंदगी में मिलती हैं। सहाबा इकराम इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च किया करते थे, यहां तक कि जिस आदमी पर खर्च कर रहे हैं, जिस आदमी को दे रहे हैं, उसे भी पता नहीं चलता था कि हमारी मदद कर रहा है तो कौन कर रहा है, अगर हमारे घर राशन भेज रहा है तो कौन भेज रहा है, कौन है जो हमारे खाने का इंतजाम कर रहा है। हमारी मुसीबतों के ताल्लुक से उस आदमी का दिल धड़क रहा है और हमारी परेशानी में हमारा साथ दे रहा है। हजरत अली बिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, इनके ताल्लुक से आता है कि वो लोगों की बेतहाशा मदद किया करते थे, रातों में जाकर उनके घरों पर राशन पहुंचाया करते थे। सुबह जब गरीब लोग अपने घरों का दरवाजा खोलते तो बराबर हर महीना उनके घर के सामने राशन मौजूद होता। पता नहीं चलता कि कौन देने वाला है, कौन खर्च करने वाला है। अगर पता चला तो कब पता चला, जब अली बिन हुसैन का इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद उनके घरों को राशन आना बंद हो गया, तब लोगों को पता चला कि ये खर्च करने वाला, ये अल्लाह के रास्ते में देने वाला जो बंदा था वो अली बिन हुसैन थे। और जब लोग उनको इंतकाल होने के बाद उनको गुस्ल दे रहे थे तो लोगों ने देखा कि उनके कांधे पर बोझ उठाने की वजह से उनके कांधे पर उसके निशानात मौजूद थे। तो इन दोनों चीजों को जोड़कर लोगों को यह बात पता चली कि जो आदमी किसी को पता चले बगैर इन गरीबों की मदद किया करता था वो कोई और नहीं था, वो अली बिन हुसैन थे। ये मिसालें आज हमारे माशरे के अंदर इनकी जरूरत है। इस तरह से हम खर्च करें। देखें, वो ऐसा भी नहीं कर रहे, यहां तक कि अपने गुलाम को भी नहीं कह रहे कि आओ मेरे साथ आओ, ये राशन उठाओ, ये थैला उठाओ, ये बस्ता उठाओ और गरीबों तक हम पहुंचाएं। बहुत सारे मालदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि वो भी जब खर्च करें तो खुद जाकर अल्लाह के रास्ते में दें। उनके नौकर होते हैं, उनके पास काम करने वाले होते हैं, उनको ऑर्डर दे देते हैं कि लेकर जाओ, इतना पैसा फला घर पहुंचा दो, इतना चावल फला घर पहुंचा दो। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सदका व खैरात को छुपाएं और इस गुनाह से, यानी एहसान जतलाना, ये जो गुनाह है, इस गुनाह से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो इस तरह से अगर हम और आप नेकी करेंगे तो फिर इससे अपने आप को इस किस्म के गुनाह से बचा सकते हैं। हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तो सिर्फ ये हुक्म दिया कि तुम बस खर्च करते जाओ, नेकियां करते जाओ। जैसा कि पुराने जमाने में कहा करते थे, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। मतलब क्या है? नेकी करो, भूल जाओ, उस आदमी से किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखो, न खुद याद दिलाओ, न उस आदमी को याद आने पर मजबूर करो, न खुद उसके सामने तस्किरा करो, न दूसरों के सामने तस्किरा करो कि मैंने ऐसा किया, मैंने मस्जिद को इतना पैसा दिया, मैंने फुला आदमी को इतना पैसा दिया, मैंने फुला औरत की शादी करवाई, मैंने उसके ऊपर ऐसा एहसान किया। ये तमाम चीजें, इससे हमारे सदका व खैरात जाए हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हम और आपको मौत आने से पहले, जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जिंदगी दी है, हम और आप इससे फायदा उठाएं,
इस मौके को गनीमत जाने और जितना हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत। ऐ ईमान वालो, जो रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है, जो पैसा हमने तुम्हें दिया है, उन पैसों को मेरे रास्ते में खर्च करो। हम जो पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो ये हमारे अपने चाहने की वजह से नहीं है, ये हमारी अपने कोशिश की वजह से नहीं है, बल्कि ये सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से है। अगर हम कोई नेकी करते हैं, आप अपने दिमाग में इस बात को रखें कि मैंने चाहा इसलिए मैंने नेकी नहीं की, बल्कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी इसलिए मैंने नेकी की। अगर ये एहसास हमारे दिल में आ जाएगा, कभी भी कितनी भी बड़ी आप नेकी कर लेंगे, आपको लगेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक थी, अल्लाह का फजल था कि मैंने काम कर लिया, वरना मेरी अपनी इतनी ताकत कहां है कि मैं खुद आगे बढ़ूं और अल्लाह की मर्जी के बगैर मैं काम कर लूं। तो अल्लाह ने कहा कि जो माल हमने तुम्हें दिया है, ये एहसास हमको होना है कि जो मैं माल खर्च कर रहा हूं, ये मेरा माल नहीं है, अल्लाह का माल है, अल्लाह ने मुझे दिया है, फुला को नहीं दिया, मुझे दिया, इसलिए दिया ताकि अल्लाह देख सके कि क्या जिसको दिया गया है वो आदमी उस पर खर्च कर रहा है, जिसको नहीं दिया गया है, जो फकीर है, जो मिस्कीन है, जो कमजोर है, जो जरूरतमंद है, क्या उन लोगों को वो आदमी खर्च कर रहा है, उनको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि जो माल हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो। कब तक खर्च करो? मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, तुम्हारी मौत आने से पहले। एक और आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया, मिन क़ब्लि अन यअतिया यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफा, उस दिन के आने से पहले खर्च करो जिस दिन न किसी किस्म की तिजारत काम आएगी, जिस दिन न किस्म की दोस्ती काम आएगी, जिस दिन न किसी किस्म की कोई सिफारिश काम आएगी। यानी क़यामत का दिन आने से पहले, तुम्हें मौत आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जितना हो सकता है खर्च कर लो, जितनी नेकियां कर सकते हो कर लो, क्योंकि जब ये दिन आ जाएगा, जब मौत आ जाएगी, जब क़यामत का दिन आ जाएगा, फिर हम चाह कर भी अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च नहीं कर पाएंगे। आप देखें कितने लोग हैं जिनको हम और आप देखते हैं कि एक जवान आदमी है, तंदुरुस्त आदमी है, अचानक से मौत वाक़ हो जाती है। अभी हमारी इसी इलाके की आप मिसाल ले लें, 2 दिन पहले एक जवान आदमी की इंतकाल हो गया, एक जवान आदमी की मौत हो गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी जो जवान है, तंदुरुस्त है, अचानक से इस तरह से कोई मामला हो जाएगा, फिर उनका इंतकाल हो जाएगा। आज भी हमारे पास हमारे इस इलाके में एक जनाजा उठने वाला है। हम और आप कितने लोगों को, कितने जनाजे हम रोजाना देखते हैं, उन्हें अपने कांधों पर उठा कर ले जाते हैं और उन्हें कब्रिस्तान ले जाकर दफन करके आ जाते हैं। लेकिन ये मामलात हमारे सामने होने के बावजूद अफसोस की बात यह है कि हमारी और आपकी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आ रही है। ये तमाम वाकयात हम और आप देख रहे हैं कि मौत जब आती है तो हमको पता है कि मौत ये नहीं देखती कि ये बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये मर्द है, ये औरत है। मौत ये नहीं देखती कि ये तंदुरुस्त है, ये बीमार है। मौत ये नहीं देखती कि इसकी अगर मौत वाक़ई हो जाएगी तो इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, इसकी बीवी बेवा हो जाएगी, इसके माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे। मौत जब आती है तो आकर रहती है। इन तमाम चीजों की मौत को कोई परवाह नहीं होती। एक लम्हे के लिए भी मौत ना आगे होती है, एक लम्हे के लिए भी मौत ना पीछे होती है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप जितनी हो सकती है उतनी ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, और नेकियां करने के बाद जैसा कि हमने कहा कि इन नेकियों की हिफाजत की फिक्र करें। जो भी नेकी हम और आप करते हैं, खासकर दूसरों को मदद करना, ये जो नेकी है, इस नेकी को बर्बाद करने का जो सबसे खतरनाक जरिया है वो यही कि हम और आप लोगों पर एहसान जतलाते हैं। अब हम और आप लोगों पर एहसान जतलाएंगे तो उसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अजाब भी उनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने सुनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, बयान फरमाते हैं, सलासतुन, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात भी नहीं करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात भी नहीं करेगा। उनसे सवाल जवाब का मसला तो दूर की बात, आदमी किससे बात नहीं करता है। दुनिया में भी हम देखते हैं, जिस आदमी को आदमी नापसंद करता है, जिस आदमी के दिल में हमारे ताल्लुक से नफरत होती है, ऐसा ही आदमी हमसे बात करने को नापसंद करता है। अब आप सोचें कि अगर अल्लाह उस आदमी से बात नहीं करेगा तो फिर कौन होगा जो उससे बात करेगा और उसका दिल बहल जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि 3 किस्म के लोग हैं, उनसे अल्लाह बात नहीं करेगा। चलो बात नहीं किया,
इससे बढ़कर और वला यंजुरु इलैहिम, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं अल्लाह, देखना भी पसंद नहीं करेगा अल्लाह उसकी तरफ। वला युज़क्कीहिम, और ना ही अल्लाह तबारक व तआला उसका तज़किया करेगा, ना ही अल्लाह उसे गुनाहों से पाक करेगा। वो तीन किस्म के लोग कौन है? सहाबा किराम ने फौरन सवाल किया, मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी कौन है वो तीन लोग? अल्लाह के नबी ने कहा, कद खाबू व खसिरू, ये जो लोग हैं वो नाकाम हो गए, नामुराद हो गए, बर्बाद हो गए। तीन मरतबा अल्लाह के नबी ने ये बात बयान फरमाई। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो आदमी जो अपने कपड़ों को टखने से नीचे लटकाता है, अपने कपड़ों को टखने से नीचे लटकाने वाला, इस बात को आप लोग कान खोल कर सुन ले, कपड़े टखने से ऊपर करना सिर्फ नमाज के हद तक नहीं है। हमने समझा कि नमाज का एक हिस्सा है कि टखने से ऊपर कपड़े को रखना है, हमेशा 24 घंटे हमारे कपड़े टखने से ऊपर होने चाहिए। फिर दूसरे आदमी के बारे में अल्लाह के नबी ने तस्कीरा किया, कहा कि वो आदमी जो झूठी कसमें खाकर अपने पास जो सामान है उस सामान को बेचता है। और तीसरा वो आदमी जब वो किसी की मदद करता है, किसी को कुछ सदका और खैरात देता है, अतिया देता है, अतिया देने के बाद उस आदमी पर वो आदमी एहसान जतलाता है। इसी तरह एक और हदीस भी है, उसमें अल्लाह के नबी ने 5 लोगों का जिक्र किया कि 5 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। उनमें से एक आदमी का अल्लाह के नबी ने जिक्र किया, कहा वल मन्नान, और वो आदमी जो लोगों पर एहसान करने वाला होता है, नेकी करने के बाद, सदका और खैरात देने के बाद उन पर एहसान जतलाने वाला होता है। तो इन तमाम बातों से जो बात हम और आपको समझ में आती है वो ये कि सबसे पहली बात तो ये कि नेकी करने के बाद उस नेकी की हम और आप हिफाजत करें। उसकी हिफाजत का एक जरिया ये है कि हमने अगर किसी की मदद की है तो अल्लाह तबारक व तआला से उसके बदले की उम्मीद रखें, लोगों से उसके बदले की उम्मीद ना रखें। और साथ में मौका आने के बावजूद भी, जरूरत पड़ने के बावजूद भी कभी उस आदमी पर एहसान न जतलाएं। और इसी तरह इससे हमारी नेकी भी बर्बाद हो जाएगी और कल क़यामत के दिन इतनी अजीम, इतना बड़ा सजा भी हम और आपको मिलने वाला है। इसलिए हम और आप इस तरह के जो भी गुनाह हैं, इस तरह की जो भी बुराइयां हैं, इससे अपने आप को बचाए रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपनी हर किस्म की नेकियों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने के बाद एहसान जतनाने से हम तमाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो भी लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो भी लोग मुसीबतों में हैं, अल्लाह मुसीबतों से निकलने के रास्ते उनके सामने हमवार फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो भी बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिला कामिला नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो इंतकाल कर चुके हैं उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनके क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, जब ख़ातिमा हो तो ईमान पर फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन वस्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊ यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व अज़्ज़ व जल्ल व अतम्म व अकबर।